So today what we will be discussing is the first topic which we'll be discussing is what if analysis. Now before we start with this what if analysis, I want everyone to prepare this data. I hope you all can see this data. Yes, ma'am. Yeah. So kindly prepare this data on your Excel sheet. Just write any random figures, not necessarily कि आप यही copy करो. But हाँ, ये जो मैंने titles लिखे हुए हैं, kindly allow this to remain the same in order to understand the concept. प्रज्ञा, ललित, मेघा, प्लीज क्लास में इन्फॉर्म करो बेटा, बच्चे ज्वाइन करें. Okay, sir. Done? Yes, ma'am. Okay, let us give few more seconds to others as well. Okay, so I hope everyone has typed this data. Now, in this data, what exactly we have done is we have taken an income. So let's say, for an example, income is 1,50,000. And then I have taken certain expenditures, monthly expenditure, rent, food, shopping, travel, EMI, miscellaneous expenditures. Then what I have done is I have applied a formula कि मेरे total expenditure आ जाए यहाँ पे, तो total expenditure आ गए. So it's a sum function which I have applied. I'm sure you all must have applied the same in order to calculate the sum of expenditure. And then what I have done is I have applied a formula on this total saving. अब ये जो formula है मैंने जो apply करा है, it is like total income minus total expenditure. So in a way, what am I trying to find out? I'm trying to find out my total savings. So if I'm earning this much and my expenditure is this much, so my monthly saving will be how much? This is what I'm trying to understand, right? So in case you have not applied a formula on this total savings column, then I will just request you to please apply it. Just subtract total expenditure from total income. Have you all done it? Have you all done it, class? Am I audible? Yes, ma'am. Okay. So you have done it, Ullas? मैं ट्राई कर रहा हूँ. Okay. फॉर्मूला नजर आ रहा है जो मैंने अप्लाई कर रखा है? B1 माइनस B10 दिख रहा है? Yes, मैम दिख रहा है. हाँ. तो इट्स अ सिंपल थिंग, सिंपल सब्ट्रैक्ट करा है मैंने टोटल इनकम में से, टोटल एक्सपेंडिचर को मैंने सब्ट्रैक्ट करा है टोटल इनकम में से. यू वांट मी टू शो इट हाउ इट हैज टू बी डन?
गया. Okay. What about others? Is it done? Okay, so I assume Ma'am? that everyone has done it. मैम सम के लिए हम ऑल्ट प्लस इक्वल भी तो कर सकते हैं. Alt plus equal. ऑल्ट प्लस इक्वल टू सम के लिए अगर हमें सम निकालना हो तो. आप इस सम की बात कर रहे हैं, ये जो टोटल एक्सपेंडिचर हमने निकाला है. यस मैम. हाँ, आप कैसे भी सम निकाल सकते हैं. सम निकालने के लिए बहुत सारे तरीके हैं. हम यहाँ पर होम टैब पर जाके ही ऑटो सम क्लिक कर दें तो भी आपका सम आ जाएगा, या फिर हम एक एक इंडिविजुअल नंबर्स को लेके हम प्लस करें तो भी सम आ जाएगा. इसके बारे में तो आई बिलीव हम बात कर चुके हैं पिछली सेशंस में. यस मैम. यस बट मैं शॉर्टकट के लिए पूछ रहा था. शॉर्टकट मेथड है ना ये ऑल्ट हाँ, प्लस. बिल्कुल आप शॉर्टकट मेथड अप्लाई कर सकते हो. यहाँ पे यहाँ पे हम सम लगाने की बात नहीं कर रहे, तो आप सम किसी भी मेथड से निकाल सकते हो. दैट इज नॉट एन इशू. What is important in order to understand this what if analysis is if we can, we need to apply this formula of total saving at this section. ये important है. Let me highlight it with some other color. ये जो yellow में मैंने formula apply करा है, यस so this मैम. is important in order to understand this what if analysis. ठीक है, ये कर लिया. यहाँ तक सब लोगों ने टाइप कर लिया. Now moving further, what is it that we are trying to understand? We are trying to understand that what if my income increases, what will be the impact on my saving, or by how much my savings will increase, or what will be my saving? This is what I'm trying to identify. That is one part of the question. Again, the second part of the question is what if my rent increases, then what will be my saving? What if my miscellaneous expenditure increases, what will be my saving? What if my shopping expenditure decreases, what will be my saving? So basically I'm trying to find out the answers to all my questions. Now, does Excel provide us a feature wherein I can get a summarized answer to all my questions? The answer to that question is yes. Excel provides you this what if analysis function wherein you can post all the questions whatever you require, and you can get a summarized version of your output. So that is the first step of what if analysis, and the topic under what if analysis we are discussing is scenario manager. Scenario, I think I have written the spelling wrong. Scenario manager. So this is what we will understand. Basically, these are different scenarios. If my income increases is first scenario. If my expenditure decreases is my second scenario. If my shopping expenditure decreases is my third scenario. If my rent increases is my fourth scenario. So all I'm trying to do is I'm trying to understand impact on my saving on the basis of different scenarios, right? So how am I going to solve this particular thing, or how am I going to get the summarized report of this thing which I need? Is all I need to do is I'll click on the data tab. Let me share my entire screen. Just a second. Okay. So I'll click on the data tab. In the data tab, in the forecast section, I have what if analysis. So you all can, try it with me, but then first listen to what am I saying, and then after you can try. So data tab पर हमने click करा, and we clicked on this what if analysis. What if analysis पे click करके हमने scenario manager पे click करा. So that is the first thing we are discussing. That is scenario manager. So data, what if analysis and scenario manager. अब इस पे हमने click करा. I am deleting few scenarios. Okay. तो अभी आपको जो करंट में विंडो दिख रही होगी, it would have been something like this, a blank window, right? Now it is asking us to add a scenario. So let me add the first scenario. Let me name this scenario as income increase.
Okay, by changing cell. Now, can anyone tell me which all cells will be changing? Out of these given cells, कौन से ऐसे सेल हैं जो कि चेंज होंगे? मैम इनकम। ओके, सो मैं यहाँ पे चेंजिंग सेल में वो सेल सेलेक्ट कर रही हूँ. टोटल सेविंग्स भी तो चेंज होंगे मैम। बिल्कुल सही. तो टोटल सेविंग्स ऑफ कोर्स चेंज होंगे, बट वो तो हमारा फाइनल इम्पैक्ट है ना, जिसपे हम इम्पैक्ट देखना चाहते हैं. अभी हम बात करें, हम सिनेरियोज ऐड कर रहे हैं. तो सिनेरियोज ऐड करते टाइम क्या क्या चीजें हैं जो कि चेंज हो सकती हैं? सो वन इज द इनकम, शॉपिंग एंड ट्रैवल। रेंट, यस, रेंट, फूड, शॉपिंग, ट्रैवल, EMI, मिसलेनियस. ये सारे के सारे सेल्स में डेटा चेंज हो सकता है. डू यू ऑल एग्री टू दिस? यस मैम। यस मैम। Okay. So all I have done is I have selected these cells. I'll just repeat this step again. In the changing cell, I need to select the cells which can change. So one is the income, then I have placed a comma, then I have chosen rent. मैं चाहूं तो फिर से कॉमा लगा के अगला सेल सेलेक्ट कर सकती हूँ, और since they all are together, so I am choosing range of cells which is B4 to B9, right? मैंने इन सेल्स को सेलेक्ट कर लिया एंड आई जस्ट क्लिक ऑन ओके. नाउ व्हाट वाज माय फर्स्ट सिनेरियो जो मैं ऐड करना चाह रही थी? दैट वाज इनकम इंक्रीजेस. सो लेट्स से माय इनकम इंक्रीजेस टू 2 लाख पर मंथ. सो लेट मी ऐड, एंड अगेन क्योंकि इनकम मेरा B1 सेल में लिखा है, सो आई विल मेक दैट चेंज इन B1 सेल. You all can see this is indicating as B1. So I am writing the first value which is 2 lakh. बाकी चीजें क्योंकि मेरे इस सिनेरियो में बाकी और कोई भी चीज चेंज नहीं हो रही है, सो आई एम कीपिंग इट सेम एंड आई जस्ट क्लिक ऑन ओके. ठीक है. उसके बाद वंस अगेन आई क्लिक ऑन ऐड. आई एम एडिंग द सेकंड सिनेरियो. लेट्स से दिस टाइम माय रेंट इंक्रीजेस. ठीक है. अगेन द चेंजिंग सेल ऑटोमेटिकली आ रहे हैं इस बार. आई डोंट नीड टू मेक एनी चेंज इन दिस. आई जस्ट क्लिक ऑन ओके. रेंट मेरा B4 में था. लेट्स से रेंट इनकम मेरी 1,50,000 थी रही, लेकिन रेंट मेरा डबल हो गया. इट इज 40,000. तो मैंने 20,000 को 40,000 कर दिया. आई विल क्लिक ऑन ओके. लेट मी ऐड थर्ड सिनेरियो. मैम रेंट आपने 40,000 ही क्यों लिया? मेरा मन करा 40,000 करने का. आपका 30 करने का मन है, आप 30 कर दो. It is just random value I have taken. There is no specific reason to it. Okay. I am just, see, all I am trying to analyze is कि अगर मेरा रेंट बढ़ता है या घटता है तो मेरी सेविंग्स पे क्या इम्पैक्ट आएगा. क्योंकि मैंने सिनेरियो लिया था कि रेंट इंक्रीजेस, तो मैंने रेंट अपना बढ़ाया. अब वो आपकी मर्जी है. आपका रेंट अगर 15,000 से बढ़ रहा है तो आप 15,000 लिखो. आपका रेंट अगर 20,000 से बढ़ रहा है तो आप 20,000 लिखो. ठीक है. दैट वैल्यू वॉट एवर यू राइट इज टोटली अप टू यू. ठीक है. Yes, ma'am. Okay. So let me take the third scenario, which is shopping. घर में शादी है तो shopping expenditure increases. ठीक है. इसके साथ क्या मैं दो वैल्यूज चेंज कर सकती हूँ? लेट्स से शॉपिंग और ट्रैवल, ये दोनों ही इंक्रीज हो गया है इस मंथ. So I have named the scenario as shopping increases, travel increases. Changing cell will remain same. I'll click on OK. Now shopping is in which cell? It is in B6. So B6 में shopping था 5,000. Let me change it to 8,000. Again a random value I am taking. और मैंने बोला था कि travel expenditure increases. तो travel 3,000 था पहले. Let me change it to 10,000. ठीक है. And let me click on OK. ठीक. Now what I'll do is I'll just click on summary. जैसे मैं summary पे click करूंगी, it asks what should be the result cell. That is, on which cell do we want to see the impact. तो हम अपनी savings पे impact देखना चाहते हैं. That is cell number B12, right?
So I have chosen cell B12. यहां पर मेरे को B12 select करना है. Automatically you can see B12 will come here, right? And I'll click on OK. As I click on OK, automatically a summary sheet comes. अब ये summary sheet क्या indicate कर रही है? सबसे पहले इंडिकेट करिए करंट वैल्यूज, यानी कि जो वैल्यूज मैंने लिख रखी थी इनिशियली, जहां पे मेरी सेविंग 77,000 आ रही थी. दूसरा जो समरी आ रही है, दैट इज अबाउट इनकम इंक्रीजेस. सो इफ माय इनकम इंक्रीजेस फ्रॉम 1,50,000 to 2 lakh, दैट मींस माय एंड माय एक्सपेंडिचर रिमेन्स सेम. तो मेरी सेविंग्स क्या हो रही है? इट इज चेंजिंग फ्रॉम 77,000 to 1,27,000. इंक्रीज हो रही है. ऑफ कोर्स, क्योंकि मेरी इनकम बढ़ रही है. उसके बाद थर्ड केस में मैंने देखा, सॉरी सेकंड केस में मैंने देखा कि रेंट अगर मेरा बढ़ जाए, तो रेंट मेरा पहले 20,000 था, दैट इज इन द करंट वैल्यू इट वाज 20,000, रेंट हैज इंक्रीज टू 40,000. तो इससे क्या हुआ, मेरी सेविंग्स जो कि पहले 77,000 थी, अब वो डिक्रीज होके 57,000. शॉपिंग और ट्रैवल अगर बढ़ा मेरा, तो सेविंग्स मेरी जितना भी शॉपिंग और ट्रैवल जिस भी अमाउंट से बढ़ा, उसके कारण मेरे सेविंग्स में इंपैक्ट आ रहा है. नाउ माय सेविंग्स इज 67,000. सो इन शॉर्ट, you know, with this scenario manager, what exactly you can do is you can analyze your data with respect to the changing values. If any value you want to change and you want to see the impact on one particular thing, कि उस पर्टिकुलर चीज पे इम्पैक्ट कैसे आएगा if I change certain values, then of course with the help of this scenario manager you can always use the scenario manager in order to analyze that data. I hope it is clear, class. Yes, ma'am. So you want to try it? Just try it once. एक बार आप लोग ट्राई करो. Done? Have you all tried it? मैम सिनेरियो नंबर नेम में हम अब इंक्रीजिंग वैल्यूज लिखेंगे. सिनेरियो नेम में आपको जो भी नामकरण करना है, इट्स लाइक यू वांट टू नेम योर सिनेरियो. यू कैन राइट वट एवर यू वांट. आप ऐसे भी लिख सकते हो सिनेरियो 1, सिनेरियो 2. आप ऐसे भी लिख सकते हो इनकम इंक्रीजेस या शॉपिंग एक्सपेंडिचर डिक्रीजेस. टोटली अप टू यू. ओके उल्लास? ओके मैम, ओके.
Once you have completed in trying this question, just let me know. Anyone of you want me to repeat these steps? I can do that. मैम जैसे लास्ट में टोटल सेविंग जो आ रहा है ना मैम, मैं हाँ जी। ऊपर इनकम चेंज कर लिया, रेंट भी चेंज कर लिया, जो लास्ट में टोटल सेविंग का आ रहा है उसमें हमारा फॉर्मूला में दिक्कत आ जा रही है मैम। इफ मैं केवल रेंट चेंज कर रहा हूँ ना मैम हाँ, एक्सपेंडिचर में, तो बोल रहा है कि फॉर्मूला गलत हो जाएगा इफ नीचे वैल्यू चेंज करोगे तो। आपने एग्जैक्टली यही करा है जो मैंने करा था। मैम एक्चुअली जो लास्ट स्टेप था ना, जो आपने किया था लास्ट वाला, जो टोटल सेविंग में आपने किया था, वो मैं हाँ, भूल गया था मैम कि उसको कैसे करना था। तो बीच वाला जैसे मैं किए थे दोबारा वैसे बता ही। देती हूँ, मैं दोबारा बता देती हूँ। जस्ट अ सेकेंड। ओके, ये तो सब लोगों ने किया है ना। यहाँ पे इनकम लिखा है, फिर आपने एक्सपेंडिचर की डिटेल्स लिखी है, और फिर उसके बाद आपने टोटल सेविंग्स लिखा है, राइट? यस मैम। टोटल सेविंग्स में दिस फॉर्मूला यू मस्ट हैव क्रिएटेड। यस मैम। ठीक है, अभी क्या करना है, आई एम जस्ट डिलीटिंग ये सिनेरियो समरी जो क्रिएट हो गई थी। Okay, what you need to do is you need to click on data tab. You need to go to what if analysis. In the what if analysis, you need to click on scenario manager. मैम हो गया। Okay, scenario manager में आने के बाद you need to add scenarios. Scenarios कैसे add करोगे आप? Add button पे click करके. You can write down scenario name as let's say EMI decreases, and the changing cell आपके या तो आपको सेलेक्ट करने होंगे अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे, या फिर ऑटोमेटिकली वो आ रहे होंगे अगर आप ये चेंजिंग सेल सेलेक्ट कर चुके हो। सो चेंजिंग सेल सेलेक्ट करने के लिए ऑल यू नीड टू डू इज यू नीड टू सेलेक्ट द सेल्स जो भी चेंज हो सकते हैं, लाइक B1 फ्रॉम रेंट टू मिसलेनियस। ये सारे के सारे चेंजिंग सेल्स आपने सेलेक्ट कर लिए, और उसके बाद just click on OK. Then because our scenario was EMI increases, तो हम क्या करेंगे, अपनी EMI को चेंज कर देंगे। लेट्स से EMI चेंजेस फ्रॉम, हमने सिनेरियो क्या लिया था, आई थिंक डिक्रीजेस ही लिया था ना। सो डिक्रीज हुआ है तो लेट मी चेंज इट टू 10,000, फ्रॉम 25,000 टू 10,000, एंड आई जस्ट क्लिक ऑन ओके। ठीक है, तो मेरे पास 4 सिनेरियोज आ रहे हैं। ठीक, अब इन चारों सिनेरियोज का मुझे आउटपुट देखना है किस पे, अपने B12 सेल पे, विच इज नथिंग बट टोटल सेविंग। तो मैं यहाँ पे समरी बटन पे क्लिक करूंगी। आई जस्ट क्लिक ऑन समरी। जैसे मैं समरी बटन पे क्लिक करूंगी ये मेरे को रिजल्ट सेल दिखाएगा। तो अगर आपका रिजल्ट सेल यहाँ पे आ रहा है ऑटोमेटिकली, देन इट इज गुड। इन केस नहीं आ रहा है, सो ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट क्लिक ऑन रिजल्ट सेल, और उस सेल पर जाओ जो कि आपकी टोटल सेविंग्स वाला सेल है, जिसपे आपने फॉर्मूला अप्लाई करा। तो मैंने यहाँ पे रिजल्ट सेल पे क्लिक करा, विच इज B12, एंड आई जस्ट क्लिक ऑन ओके बटन। जैसे ही मैं ओके बटन पे क्लिक करूंगी ऑटोमेटिकली मेरी समरी आ जाएगी। सी, आई एम गेटिंग इनकम इंक्रीजेस। जो 4 सिनेरियोज अब मैंने पहले Yes, 3 ऐड कर रखे थे और अभी लास्ट वाला सिनेरियो EMI डिक्रीजेस। So you can see the impact what I am seeing on my total savings. I hope it is clear. यस मैम आ गया मैम। Okay. So Yes, ma'am. everyone आ has गया, ma'am. tried it? Yes, ma'am. Okay. So shall we move further? Next topic पे जाएं? यस मैम। Okay. So next, in order to understand the next topic, again the next topic is part of what if analysis, and that is goal seek.
So in the what if analysis, we have three things: scenario manager, goal seek and data table. तो अब हम goal seek देखेंगे. Goal seek देखने से पहले let me just increase the font value so that you all can see it. Okay. I'm adding certain values to this. All I have written is current saving. You all can write it on your Excel sheet. So current saving 5,000 है. Years until retirement is 25. Interest rate is 8%. Let's say I have a goal in my mind. I am trying to plan my retirement. कि मेरे पास अभी 25 साल है, अगर मैं हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करती हूँ, सो चलो हर महीने नहीं, साल की बात करते हैं. सो इफ आई इन्वेस्ट ईयरली 5,000 at a 5% interest rate, what is it that I'll get after 25 years? So for this, I'll apply a future value formula. Future value formula, I'll not talk about future value formula because that formula you will be studying in your financial management. तो जब आप उसमें पढ़ोगे, you'll be able to understand this future value formula. But ये formula apply कैसे करते हैं, मैं आपको वो बता सकती हूँ. तो मैं फॉर्मूलाज पे गई. अच्छा, अब हम एक और तरीका सीख रहे हैं. अभी तक आप लोगों ने एक तरीका सीखा था फॉर्मूला अप्लाई करने का. यूल राइट इक्वल टू साइन एंड यूल राइट लाइक दिस और ऑटोमेटिकली फॉर्मूला आ जाता है. एक तो ये तरीका आप लोगों ने सीखा है, राइट. अब मैं एक और तरीका बता रही हूँ आपको फॉर्मूला अप्लाई करने का. सो वी आर एक्चुअली लर्निंग टू थिंग्स हियर. वन इज द गोल सीक एंड अदर इज हाउ डू वी अप्लाई अ फॉर्मूला इन सम अदर वे. तो अभी पहले हम फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे उसकी बात करेंगे. So I just come to this cell, that is cell number D5, and I'll click on formula tab. I'll click on insert function. ठीक है. अब इस insert function में I'll select the future value formula. So that future value formula जो कि Excel में available है वो FV के नाम से है. So I'll click on FV and I'll just click on go. तो जैसे ही मैं गो पे क्लिक करूंगी, जो भी फॉर्मूला एफवी से स्टार्ट हो रहे होंगे वो सारे के सारे आ जाएंगे. सिंस आई एम लुकिंग फॉर एफवी फॉर्मूला, सो आई विल सेलेक्ट दैट एंड आई विल क्लिक ऑन ओके. जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूंगी, यू ऑल कैन सी इट इज आस्किंग मी द आर्ग्यूमेंट्स. तो सबसे पहले इट इज आस्किंग फॉर रेट. तो मैंने रेट सेलेक्ट कर लिया, विच इज इन सेल D4. देन इट इज आस्किंग फॉर नंबर ऑफ ईयर्स आई हैव, NPR. So I have selected 25, which is cell number D3. Then it is asking for payment. तो जब हम future value का formula देखते हैं, this probably you will understand again in financial management. तो हम जब payment की value डालते हैं, it is always in negative. So हम minus के साथ डालेंगे our current saving value, that is the data which is present in cell D2. ये minus क्यों रखते हैं, इसके पीछे इसकी implication होती है. So, though this is not part of your Excel workshop, but just to make you understand, ये पैसा मेरे पास से जा रहा है, इसलिए हम इसे नेगेटिव में डालते हैं. तो हमने यहाँ पे -D2 डाला and I'll just click on OK. So that means if I save 5,000 every year in 25 years at 8% interest rate, all I get is 3,65,530 rupees. But then this is not my goal. My goal is I want 1 crore rupee after 25 years at this interest rate. So this is what my goal is since I am planning my retirement. So will Excel help me in, getting me to that or reaching me to that goal? So what I'll do is I'll use this Excel function of what if analysis और उसमें भी goal seek पे मैं जाऊंगी. अब goal seek पे मैं गई तो it says set cell. So I want to set cell D5 to a value. What is that value? That is of 1 crore. तो 1 करोड़ में कितने जीरो आएंगे? 7. So let me write 7 zeros. Okay. So I wrote 7 zeros and then comes the changing cell. Now what is it that can be changed? Can I change my years of retirement? Savings. Okay, absolutely right. So it's the savings which can be changed. I cannot change my years of retirement. I cannot change the interest rate which bank is providing. But one thing which I can change is
my current saving. saving. So I will choose my current saving cell here. ठीक है, cell D2. So all I have done in the goal seek section is I want to set this cell number D5 to a value of 1 crore, and by changing what cell? By changing my saving. And I'll just click on OK. I think मैंने 1 0 कम लगाया. चलो, anyways, अगर मुझे 10 लाख की सेविंग चाहिए, that means what do I want? What do I need to do? I need to save 13,678 rupees yearly. That is how I can reach to a goal of 10 lakh. Shall I repeat this step once again? Yes, ma'am. Please repeat. Okay. So, यहाँ ये फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला कैसे लगा, ये भी रिपीट करूं? Yes, Yes, ma'am. ओके, सो लेट मी डिलीट इट. तो देखो, दो तरीके हैं. हम पहले तरीके से लगा लेते हैं. इक्वल टू FV हमने लिखा. सबसे पहले हम रेट चूज करेंगे, तो रेट इज 8%, कॉमा, दूसरा है पेमेंट, सॉरी, NPR विच इज 25, दैट इज सेल D3, एंड थर्ड वी हैव पेमेंट. तो पेमेंट हम नेगेटिव साइन के साथ D2 सेल को सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर. एक तो ये तरीका है फॉर्मूला लगाने का. आई एम गेटिंग दिस 3,65,530 रुपीज, याद रखना. अब मैं इसको डिलीट कर रही हूँ. दूसरा तरीका है फॉर्मूला लगाने का. हम फॉर्मूलाज पे गए, इंसर्ट फंक्शन पे गए, FV, वी जस्ट क्लिक्ड ऑन FV, दैट इज वी आर लुकिंग फॉर अ फॉर्मूला. हो सकता है फॉर्मूला यहाँ पे हमें दिख भी रहा है, बट देन जस्ट टू रिवाइंड द प्रोसेस, FV लिखा एंड आई क्लिक ऑन गो. जैसे ही गो पे करूंगी, जितने भी FV नाम से फंक्शन स्टार्ट हो रहे होंगे, I can see all those functions. I'll click on the function which I need and I'll click on OK. As I click on OK, it asks me several things. Rate, I'll choose the rate as 8%. NPR, 25. Payment with a negative sign, I'll choose 5,000 and I'll click on OK. So I'm still getting the same figure. ये क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Now the goal seek section comes into the picture. तो हम क्या करेंगे? डेटा पर जाएंगे, what if analysis, goal seek. So it says set cell. So I want to set cell D5 to a value of 1 crore. So 1 2 3 4 5 6 7. Okay, so this time it's done right. By changing cell, so cell which can be changed is current saving. तो मैंने cell D2 select कर लिया and I'll click on OK. So now the target value is 1 crore, current value is 1 crore. Let me just see. Yes, if I want to reach to this goal of 1 crore, I need to save 1,36,787 rupees for 25 years at 8% interest rate. अभी क्लियर है? मैम गोल सिक वाला एक बार क्लियर नहीं है, एक बार बता दोबारा दें. बता देती हूँ. What if analysis, data, what if analysis, goal seek. Set cell D5. D5 क्यों? क्योंकि हमारी फ्यूचर वैल्यू D5 सेल में है. I want to set cell D5 to what? To 1 crore. Okay, so I have written 1 crore. By changing cell, current saving वाला, that is cell D2. D2 पे क्लिक करा and I'll click on OK. ये तीन चीजें डालनी है बस हमें गोल सीक में. And I'll click on OK. So the value has been changed to 1 crore.
and the current saving which I need to save is this much. अभी हुआ clear? यस मैम, अब क्लियर हो गया. एक बार आप लोग ट्राई करो. I'm giving you few minutes to try it. Yes, Kusum, you wanted to ask something? No, ma'am. Okay, you raised your hand, so that's the reason I'm asking. Done? You all have tried it? Done, everyone? Have you all tried it? Shall we move ahead? यस मैम. Okay. Done, ma'am. Now the next we will be discussing is data table. अब ये डेटा टेबल समझने के लिए पहले आप लोगों को एक टेबल बनानी होगी. Do one thing. आप लोग सबसे पहले ये लिखो, प्राइस, क्वांटिटी, डिस्काउंट. पहले ये 3 सेल का डेटा लिखो. लेट मी हाईलाइट इट विद येलो. जो येलो में हाईलाइटेड है ये सेल का डेटा आप जब लिख लेंगे तो मेरे को बताना. Done? Ma'am, लिख लिया. Yes, Okay. ma'am. Okay, now what you need to do is in the amount to be paid section, यहाँ पर हम एक फॉर्मूला लगाएंगे.
वो फॉर्मूला क्या है? सिंपल फॉर्मूला। आप कोई भी सामान खरीदने जाते हो और जितनी भी क्वांटिटी खरीद रहे हो तो वो निकल जाता है कि आपको कितना पैसा देना है। सो लेट्स से यू आर परचेजिंग 50 क्वांटिटी ऑफ 100 रुपीज ईच, तो आपको कितना पैसा देना होगा? 50 क्वांटिटी आप खरीद रहे हो और हर क्वांटिटी जो है 100 रुपए की है, तो आपको कितना पैसा देना होगा? 50,000 मैम। 50,000 और 5,000? 5,000. 5,000 है 50 into 5,000। 100, सिंपल मैथ्स यस मैम। है ना। 50, वो हम मैथ्स में पढ़ते हैं ना, 50 ऑरेंजेस वी परचेज्ड एट 100 रुपीज ईच। सो सेम वे 50 क्वांटिटी हमने खरीदी है 100 रुपए की, तो 5,000 रुपए देने पड़ेंगे। और अगर उसमें 10% डिस्काउंट है तो हमें कितना पैसा देना पड़ेगा? 4,500। 4,500। ठीक है। अब ये कैसे निकालते हैं हम इसको फॉर्मूला बना लेते हैं अपना। I'll start with an equal to sign. I hope it is visible. Let me increase the font size first. Okay. So I'm starting with an equal to sign. First, what I'll do is I'll place a bracket. I'll multiply 100 with price with quantity. So B1 into B2 मैंने करा, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करूंगी? अपना डिस्काउंट माइनस करूंगी, which is nothing but B1 into B2 into B3, that is 10%। ठीक है। जैसे ही मैं एंटर करूंगी, what will I get? I'll get 4,500. That is my discounted price which I need to pay to the shopkeeper. Yes, ma'am. है ना? तो सब लोगों ने कर लिया ये? Are you all with me? जिसने नहीं करा है फटाफट कर लो। Have you all done it? Done, ma'am. Okay. So you all are getting this 4,500, right? Yes, अब ma'am. ये जो 4,500 आपने लिखा है, इसी के सीरीज में मतलब in the same row and in the same column, you write few more, यहाँ पे आप प्राइस ले लो और कॉलम वाइज कॉलम के अंदर आप क्वांटिटी ले लो। सो लेट्स से प्राइस अगर 100 रुपए है, प्राइस अगर 150 रुपए है, प्राइस अगर 200 है, 250 है, 300 है, 350 है, या क्वांटिटी इफ यू आर बाइंग 10 क्वांटिटी और 20 क्वांटिटी और 50 और 80, क्रिएट अ टेबल, बट देन काइंडली इंश्योर कि ये जो आप क्वांटिटी लिखें या प्राइस लिखें, इट शुड बी अलाइंड विद द सेल जिसमें आपने फॉर्मूला अप्लाई करा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई रिपीट, I have applied this formula of calculating the price with quantity along with the discount. तो ये जो फॉर्मूला मैंने लगाया है, ये लगाया है सेल B5 के अंदर। तो आप जब प्राइस की वैल्यू लिखेंगे, सो इट शुड बी इन रो 5, राइट। और आपकी जो क्वांटिटी की वैल्यूज लिखेंगे, इट शुड बी इन कॉलम बी। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। Please do it accordingly. Write these values. ये ध्यान रखना, जैसे मैंने लिखा है उसके अलाइनमेंट में सिमिलरली आपको भी उसी अलाइनमेंट में लिखना है। एंड यू कैन राइट एनी वैल्यू ऑफ योर चॉइस, नॉट नेसेसरीली कि यही वैल्यूज हो, इट कैन बी एनी वैल्यू ऑफ योर चॉइस।
Once you do it, just let me know. Done. Okay, few more seconds. Okay, so I believe everyone has done it, right? Let me share the entire screen, otherwise you'll not be able to view the window. Okay. So you all can see this. We have actually created a table. Rather, we want to create a table wherein we want to see कि price और quantity इन दोनों का क्या इफेक्ट होगा at this discount rate, right? अगर प्राइस हम बढ़ाते हैं या हम क्वांटिटी बढ़ाते हैं तो मेरे को कितना प्राइस पे करना पड़ेगा. दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू एनालाइज. अब ये एनालाइज करने के लिए आई विल सेलेक्ट दीज सेल्स. जहां पे भी मैंने प्राइस और क्वांटिटी लिखी है मैं उन सेल्स को सेलेक्ट करूंगी. ठीक है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप. अलॉन्ग विद द फॉर्मूला, जिस सेल में आपने फॉर्मूला अप्लाई करा है वहां से लेके जितने भी रोज और कॉलम्स में आपने डेटा लिखा है, you can select those cells. Again, click on data, what if analysis, data table, and here comes a window. I hope you all can see this data table window. Are you all with me, class? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. So in the data table window, it is asking for row input cell and column input cell. तो रो में हमने लिखा है प्राइस, तो आई विल चूज प्राइस. और कॉलम में हमने लिखा है क्वांटिटी, सो आई विल चूज क्वांटिटी. So all I need to do is I need to choose the price and quantity which we have written at the above, and we will simply click on OK. See, that's the magic of Excel. All these things are basically showing that if I order 100 quantity at a price of 350, the value which I need to pay is 31,500 at a 10% discount rate. If I order 10 quantity at 100 rupees, all I need to pay is 900 rupees at 10% discount rate. If I order 110 quantity at 650 rupees, I need to pay 64,350 rupees at 10% discount rate. So automatically मैंने क्या करा? I'm just able to generate this table. So it is very useful if you are looking to generate any such data. And again, if I make changes in this, discount rate, let me change the discount rate to 50%. Will my table values change? Yes, it will change. See, अभी 900 आ रहा था, यहाँ पे अब 500 आ रहा है. Let me change the discount rate to 90%. See, automatically the figure changes. So in short, data table helps you to create such tables wherein you want to analyze the same set of data from different point of view. Clear hai? Shall I repeat this step again? मैम कॉलम में क्वांटिटी सेलेक्ट करेंगे ना. हाँ, मैं दोबारा बता देती हूँ. आपको फॉर्मूले से स्टार्ट करना है. जिस भी सेल में आपने फॉर्मूला लगाया, मैंने D5 में लगाया, सॉरी B5 में लगाया, तो मैं B5 से रोज और कॉलम्स दोनों को सेलेक्ट कर रही हूँ. ठीक है, पूरी की पूरी एंटायर सेट
ऑफ टेबल मैंने सेलेक्ट करी, डेटा पर गए, व्हाट इफ एनालिसिस, डेटा टेबल, रो इनपुट। तो रो इनपुट में जो मैंने रो में लिखा है डेटा, दैट इज प्राइस, मैंने प्राइस चूज करा। कॉलम इनपुट पे मैंने कॉलम में क्वांटिटी लिखी है, तो आई विल चूज क्वांटिटी एंड आई विल क्लिक ऑन ओके। अभी आया समझ में? यस मैम। रिपीट करूं? नो मैम, समझ में आ गया। जस्ट ट्राई इट एवरीवन। Done everyone? यस मैम। Okay, so let us move further. The next thing we will discuss is pivot table. Now, in order to understand this pivot table, I want you all to create this data. अब ये डेटा तो मैंने तो काफी बड़ा डेटा बना रखा है, बट आप लोग एटलीस्ट 20 या 25 सेल्स का आप डेटा ये क्रिएट कर लीजिए. लेट मी जस्ट हाईलाइट इट. Can you all see the data? Students, can you all see the data? Yes, मैम, ma'am. इट्स Yes. विजिबल। Okay. Yes, ma'am. Please make this data. We will be, the next topic which we will be discussing is pivot table. Okay, it's again an important, very important tool which you'll use in your offices when you join any corporate. So an important tool, but then I want you all to create this data. एक बार इस डेटा को फटाफट क्रिएट कर लो. मैंने 100 सेल्स तक बना रखा, 100 रोज तक बना रखा है. आप लोग जस्ट 25 तक क्रिएट कर लीजिए. कोई भी रैंडम डेटा आप इसको डाल सकते हैं, नॉट नेसेसरली कि एग्जैक्टली सेम डेटा डालें.
Done? Ajin, यस मैम। मैं वो क्या बाय हो गया? मिस्टेक माइक ऑन हो गया था। अच्छा, I thought you wanted to ask something. Okay, so I believe everyone has created this data. Yes, ma'am. Okay, Yes, ma'am. so let me share the entire screen. Okay, so this is the data which is there on my screen. And what we will do, we will use a pivot table. We'll learn how to create a pivot table. Now, this pivot table tool is actually very important from a managerial point of view, wherein if you want to analyze data from different viewpoints. तो अभी ये जो डेटा है ये कुछ कस्टमर्स का डेटा है. इफ आई वांट टू एनालाइज द डेटा विद रिस्पेक्ट टू द कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू, या फिर रीजन वाइज, या फिर प्रोडक्ट वाइज, या मे बी सेल्स मैनेजर वाइज, if I want to check the sales amount or figure. So this pivot table allows me to do that in a very easy way. So how can I do it is, I'll just click on insert tab and I'll click on pivot table. Now as I click on pivot table, it asks for select a table or a range. तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम we click here, click on any part of your Excel sheet, just select this data, click on insert, click on pivot table, and then it says where do you want the pivot table to be placed, in a new worksheet or an existing worksheet. तो अगर हम न्यू वर्कशीट पे चाहते हैं तो एक नई वर्कशीट ओपन हो जाएगी. इफ यू वांट इट ऑन एग्जिस्टिंग वर्कशीट, so I'll click on existing worksheet and then I need to give a location. So let's say मेरे को existing worksheet पे ही चाहिए and I click on K3 cell. So my pivot table will come on this K3 cell. If I choose a new worksheet, so my pivot table will go to a new worksheet. ठीक है. तो चलो हम existing पे ही कर लेते हैं. I have clicked on K3 cell and I'll click on OK. So I'll just repeat this step. It is very important. Select the data, the entire set of data. Click on insert. Click on pivot table. And you can choose where do you want to place your pivot table. मैंने existing worksheet में let's say K1 cell को choose करा and I'll click on OK. Now as I click on OK, automatically these fields appear. अब ये fields क्या है? ये fields वही हैं जो मेरे column की headings थी. So customer, region, product, sales manager, sales amount. So let's say I want to analyze the figure with respect to the sales manager. तो मैं क्या करूंगी? I'll click on sales manager and I'll click on the sales figure. Just give me a second. I think there is some issue. Just a second.
Okay. So I will select the data. कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो एक्चुअली मेरे को स्क्रॉल करना था उधर, इस वजह से वो पिवट टेबल नजर नहीं आ रही थी. So I'll select the data, I'll click on insert, I'll click on pivot table. I can choose the table range is automatically coming. I can choose a new worksheet or an existing worksheet, and I'll just click on OK. As I click on OK, I can very well see all the column headings which were there. So let's say I want to analyze my data with respect to my sales manager and my sales figure. So as I select, these particular column headings, automatically you can see this table appears. So wherein I can see, if I want to see that who is my best performing sales manager, so I can actually see it is nobody but it is Anand Mahajan. Or let's say मेरे को product wise भी इनकी categorization चाहिए. And then I want this categorization to appear, like this, that for each of the sales manager should come here, and the product should need to come in the row wise, and the sales manager need to come on the column wise. So I can very well analyze this data according to the headings जैसे भी मैं चूज करना चाहूँ. जैसे मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट हटा देती हूँ और लेट से मैं कस्टमर चूज कर लेती हूँ. And again I can move these headings from column to rows and rows to column. तो अभी यहाँ पे मेरे जो रोज में नजर आ रहा है वो कस्टमर आ रहा है, कॉलम्स में जो नजर आ रहे हैं वो सेल्स मैनेजर नजर आ रहे हैं. तो आई कैन सी कि एक्सेंचर का जो टोटल सेल मेरे पास आया है इट इज 1210 करोड़. आई कैन सी कि अंबिका सुरेश ने जो टोटल सेल करा है दैट इज 1230 करोड़. So I can analyze my data depending upon the choice I want to see my data. मुझे अगर region wise देखना है, not according to the customer, तो मैं customer हटा के region पे क्लिक कर दूंगी. So I can see east region में इतना हुआ है, north region में इतना है, south में इतना है. मुझे सेल्स मैनेजर वाइज डेटा नहीं चाहिए, तो मुझे क्या करना है, यहाँ से सेल्स मैनेजर को अनचेक करना है और लेट्स से मेरे को रीजन और प्रोडक्ट वाइज चाहिए. तो आई कैन चूज रीजन एंड प्रोडक्ट. अगेन रीजन और प्रोडक्ट दोनों ही रो में आ रहा है, तो मैं यहां पर गई और अपने प्रोडक्ट को पिक करा और कॉलम में डाल दिया. तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, आपका जो रीजन है दैट इज कमिंग इन रो वाइज एंड योर प्रोडक्ट्स आर कमिंग in column wise. So this pivot table actually helps us in analyzing the data from different viewpoints. I hope समझ में आया कुछ. मैम हाँ जी, हम इसमें मतलब अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डेटा देख सकते हैं. एब्सोल्युटली आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेटा देख सकते हो. आपको डेटा जिस हिसाब से एनालाइज करना हो आप उस हिसाब से अपने डेटा को विजुलाइज कर सकते हो. आपको अगर कस्टमर वाइज देखना है तो आप कस्टमर वाइज देख सकते हो. जैसे ईस्ट रीजन में अगर लेट से ईस्ट, अगेन यहाँ पे मैंने 3 सेट ऑफ डेटा ले लिया है. ईस्ट रीजन भी लिया है आपका, मतलब रीजन वाइज भी लिया है, कस्टमर वाइज भी लिया है और प्रोडक्ट वाइज भी लिया है. तो यू कैन सी ईस्ट रीजन में आपके कस्टमर्स कौन कौन से हैं ये दिखा रहा है, प्रोडक्ट्स कौन कौन से बिके हैं वो दिखा रहा है आपको, एंड इट इज इवन शोइंग यू द ग्रैंड टोटल. So it becomes as a manager, it becomes easy for you to analyze such data, and all you need to do is अभी आप खुद सोचो अगर आपके पास 100 सेल्स का डेटा है, 100 रोज का डेटा है, तो don't you think it would have become difficult to analyze this data from different perspective? Of course it would have been difficult. Pivot table हमारे उसी काम को बहुत आसान बना देता है. अभी मैंने कुछ नहीं करा है, मैंने सिर्फ pivot table ड्रॉ करी है and I'm just checking and unchecking these box in order to analyze the data. That is all I'm doing. मैंने sales manager डाल दिया. Now you can see east region में, north region में, south region में, product wise. So I can uncheck and check these boxes depending upon my requirement, and I can analyze the data. That is the best part about pivot table. किसी को कोई डाउट?
हम इस पिवट टेबल से वी कैन इवन ड्रॉ अ पिवट चार्ट। आपको कुछ नहीं करना है, डेटा आपने जो सेलेक्ट करा है उस पे जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे, ये पिवट टेबल जब बनेगी, आपने अकॉर्डिंगली अपनी रोज और कॉलम्स में डेटा को रखा, पिवट टेबल एनालाइज पे गए एंड जस्ट क्लिक ऑन पिवट चार्ट, चूज द चार्ट टाइप, लेट्स से कॉलम, एंड क्लिक ऑन ओके। आपका पिवट चार्ट रेडी है। यू कैन सी कि ईस्ट रीजन में अंबिका सुरेश ने कैसा करा, आनंद महाजन ने कैसा करा, महेश वर्मा ने कैसा करा। यू कैन एनालाइज इट। लेट्स से आपको रीजन वाइज नहीं चाहिए, यू वांट इट प्रोडक्ट वाइज, रीजन हटा दो, प्रोडक्ट वाइज कर दो। लेट मी पुट माय सेल्स मैनेजर इन कॉलम। अगेन I'll go to pivot table, analyze, I'll click on pivot chart, choose the chart howsoever I want, and I'll click on OK. So again, pivot chart तैयार है आपका। So that is the beauty of this pivot table. You can analyze your data as per your requirement. किसी को कोई डाउट? Are you all there? यस Yes. मैम। ट्राई कर रहे हो? यस मैम, कर रहे हैं, हो गया। ठीक है, try it everyone, just try it. डन बच्चों? यस मैम। कोई डाउट? समझ में आया पिवट टेबल? मैम लोकेशन में क्या डालना है? लोकेशन में मतलब जो टेबल है आप उसकी बात कर रहे हैं? मैम जब हम डेटा सेलेक्ट करते हैं पिवट चार्ट हम्म। फील्ड में, स्टार्टिंग में तो हम प्रोडक्ट और सेल्स मैनेजर को सेलेक्ट करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें वो ग्राफ शो हो जाता है। बट आपने मैम नीचे यहाँ पे भी डेटा सेलेक्ट करके दिखाया था।
ये वैल्यूज में। एक मिनट, आप कहाँ की बात कर रहे हैं? यहाँ ये जो पिवट चार्ट फील्ड ओपन हो रखा है इसकी बात कर रहे हैं? यस मैम, ये यहाँ पे जो आपने फिल्टर में लगा के करा था। फिल्टर में मैंने कुछ नहीं लगाया था, मैंने बेटा यहाँ पर मैं आपको ये बता रही थी, लेट्स से जब आप पिवट टेबल बनाते हो तो ब्लैंक वो कुछ इस तरीके से दिखती है, ठीक है? यस मैम। अभी मैं अपने हिसाब से जैसे भी डेटा मेरे को एनालाइज करना है मैं उसके हिसाब से चूज करती जाऊंगी। लेट्स से मेरे को प्रोडक्ट वाइज और सेल्स फिगर एनालाइज करनी है, ठीक है? तो मैंने प्रोडक्ट चूज करा और सेल्स फिगर चूज करा और मुझे यहाँ पे दिखने लग गया कि करंट अकाउंट की जो सेल हुई है वो इतनी हुई है, टर्म इंश्योरेंस की जो सेल हुई है वो इतनी हुई है, राइट? लेट्स से मुझे ये डेटा सेल्स मैनेजर वाइज भी एनालाइज करना है, तो मैंने क्या करा, मैंने एक और जो कैटेगरी थी उस पर क्लिक करा, सेल्स मैनेजर। नाउ हाउ डू आई वांट टू कीप इट? आई वांट टू व्यू इट रो वाइज और आई वांट टू व्यू रो एंड कॉलम वाइज, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि थोड़ा बेटर दिखे डेटा, तो मैंने प्रोडक्ट को कॉलम वाइज कर दिया और सेल्स मैनेजर्स को मैंने रो वाइज कर दिया, राइट? तो मैंने कुछ करा नहीं है यहाँ पे, ऑल आई डिड इज आई जस्ट केम टू दिस रोज वाला सेक्शन और यहाँ पे मेरे को दो चीजें दिख रही हैं, एक प्रोडक्ट और एक सेल्स मैनेजर। आई होप आप लोगों को नजर आ रही है? यस मैम, मतलब आपने सेलेक्ट तो वही किया है बट उसका व्यू चेंज हो गया। हाँ, बस व्यू चेंज करो, और व्यू चेंज करने के लिए कुछ नहीं करा है, मैंने एक को पिक करा है यहाँ से और उठा के मैंने कॉलम में डाल दिया है, ड्रैग करके उधर कर दिया इन सिंपल वर्ड्स। पिक्ड इट फ्रॉम हियर एंड जस्ट ड्रैग्ड इट टू कॉलम, पिक्ड इट फ्रॉम कॉलम एंड ड्रैग्ड इट टू रो, दैट्स ऑल। सिर्फ ड्रैग करा है मैंने और कुछ नहीं करा है। आप लोग ट्राई करके देखो, इजी है ये, नहीं होता है तो फिर बताना, मैं दोबारा करके दिखाऊंगी। मैम यही पिवट पूछ रहे थे टेबल, ना? हाँ जी बेटा बोलिए, मैंने सुना नहीं, आप क्या डाउट पूछ रहे थे? मैम पिवट टेबल पे जब जाते हैं तो फिर वो लोकेशन भी मांगता है ना, तो फिर उसमें क्या करना है? लोकेशन में वो न्यू शीट मांग रहा है या एग्जिस्टिंग शीट मांग रहा है? क्या मांग रहा है? एग्जिस्टिंग टीम। आप एग्जिस्टिंग शीट में कोई भी सेल सेलेक्ट कर लो, शीट पे आप हो उसका, या फिर न्यू शीट, आप न्यू शीट पे भी क्लिक सेलेक्ट करके ओके क्लिक कर सकते हो। न्यू शीट के केस में क्या होगा बेटा कि जैसे मैंने न्यू शीट चूज करी थी तो मेरी पिवट जो बन के आई, ये देखो ये मेरा डेटा था। न्यू शीट के केस में मेरी पिवट इस शीट 6 में बन के आई। अगर आप एग्जिस्टिंग शीट चूज करोगे तो यही सेम चीज जो अभी हमें दिख रही है पिवट टेबल के फॉर्म में, एग्जिस्टिंग शीट में वो यहाँ पे कहीं पे जो भी सेल आपने सेलेक्ट करा होगा वहां पे नजर आएगी। दैट इज द ओनली डिफरेंस। मैं दोबारा करके दिखा देती हूँ। डेटा को सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट पे गए, पिवट टेबल, टेबल रेंज में आपका डेटा ऑटोमेटिकली आ रहा है और लोकेशन में न्यू या एग्जिस्टिंग। तो अगर आप एग्जिस्टिंग पे क्लिक करोगे तो लोकेशन जो पूछ रहा है इसमें आप कोई भी सेल सेलेक्ट कर लो, लेट से K1 सेलेक्ट कर लिया या L1 कर लिया या J1 कर लिया, कोई भी खाली सेल सेलेक्ट कर लो एंड क्लिक ऑन ओके, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको पिवट दिखने लग जाए। ठीक है? I hope now doubt is clear. Yes ma'am. Okay. Just try it. Done? Are you all able to shift these category labels from rows to column and columns to rows? Yes, ma'am. Yes ma'am. Okay. How do you find this tool, pivot table? Very useful, ma'am. Very, very useful. Probably when you'll become managers, then you will understand the, the power of pivot table. So it is actually a very useful tool.
And trust me, it will help you a lot. Prashant sir? Yes, yes, I am available. Will you take over from here now? Yes, yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. Fine. Thank you, sir. So Okay, over to you, Prashant sir. Good afternoon, बच्चों. गुड Good आफ्टरनून सर. afternoon, sir. Okay. Good Now afternoon, today, today we will discuss about some types of error in MS Excel. ठीक है, तो whenever you work on Excel, तो you see there are some problems. There are some actually errors because of some you can say the data entry errors, or you can say some type of formula error. There are so many types of error. So basically, there are 7 types of common errors which you face in when you use MS Excel, right? So what type of errors actually these are? We will discuss about these type of errors, right? So first of all, I am sharing my screen. Just wait. अब आप देखना कि आपको पता लगेगा, हाँ सर ये वाली हमने एरर बहुत बार देखी है, ठीक है? तो आप वही चीज देखना है, ठीक है? तो वो क्यों आती है एरर, व्हाट आर द रीजंस ऑफ दैट एरर एक्चुअली, तो आई एम एक्सप्लेनिंग ऑल दीज थिंग्स. हाँ, यस अंशुल बोलो. अंशुल बोलो. अंशुल, यस सर. अच्छा, गलती से हो गया था. ओके अंशुल. ओके, स्क्रीन विजिबल है बच्चों? नो सर, अभी तो नहीं है. क्या बात कर रहे हैं यार, स्क्रीन तो विजिबल होनी चाहिए बच्चों. किसी को भी नहीं हो रही क्या स्क्रीन विजिबल? No, sir, thumbnail आ रहा है. नहीं हो रही सर. हो गई ये सर. एक्सेल है ना, एक्सेल. Yes, sir. Now Okay. हो गई सर, हो गई. ओके. नाउ सो मेनी टाइम्स आपने ये वाली एरर बहुत देखी होगी कि ये वाली एरर कई बार आती है. देखिए एरर, इस टाइप की एरर यस सर. क्यों आती है, कोई बताएगा? सर वो स्पेस कम हो जाता. हाँ, अगर हम कुछ टाइप नहीं करते तो वो अचानक से आ जाता है. नहीं, टाइप की प्रॉब्लम नहीं है ये. और कोई नहीं, बताएगा? मतलब हम गलत सिलेक्ट करते हैं ऐसे कुछ करके. नहीं. स्पेस कम होता है अभी आई थिंक संचिता ने आई थिंक कुछ बताया था. सर संचिता कुछ स्पेस कम होता है सर. अगर हम ब्रॉड कर हम्म. देंगे सेक्शन को तो हाँ. नंबर से डिजिट Right. आ जाएगा. So basically you can say कि it is not a formula based error but occurs when the width of the column is small. सीधी सी बात है कि कई बार क्या होता है कि जब हम डेटा इसमें फीड करते हैं सेल के अंदर, तो सेल की जो विड्थ है ना वो कम होती है. अब जब सेल की विड्थ कम होती है तो क्या होता है कि ये वाली एरर आ जाती है. एरर नहीं मीन्स कि ये हैश दिखाने लगता है. जैसे मान लो मैंने एक सेल में डाला कुछ इस तरीके से डेटा, ठीक है? ये एक मिनट, इसको वो बना देता हूँ कलर को. एक मिनट बच्चों, इसमें ई की पावर्स मिल रही है, वो हटा देता हूँ. देखो, दिख रहा है ये बच्चों? दिख रहा है ना? अब अगर मैं इसकी विड्थ को, कॉलम की विड्थ को इंक्रीज कर दूं तो ये हैश हट जाएंगे. ये देखो, नाउ यू कैन सी दिस. यस सर. समझ आई बात बच्चों? Yes, sir. ठीक है. तो दिस इज नॉट एक्चुअली अ फॉर्मूला बेस्ड एरर, राइट? तो दिस इज generated because the length of the column is small. तो उसकी वजह से ये वाली एरर हमारी जनरली आती है. हाँ बच्चों, क्लियर है ये बात? बच्चों समझ आई? Yes, sir. ठीक है सर रिपीट करना. हाँ, देखो कैसे करना है कि अगर जैसे एक उल्लास विड्थ है किसी सेल की, उसकी सेल की विड्थ कम है,
और उसके अंदर जो डेटा है वो ज्यादा है, राइट? तो ये प्रॉब्लम आती है। जैसे ये डेटा है, ठीक है, अब अगर मैं इसकी विड्थ को कम कर दूं, अब मैंने कर दिया इतना, अब देखो ये आ गई, राइट? तो एक्चुअली इट इज नॉट अ फॉर्मूला बेस्ड एरर, इट अकर्स व्हेन द विड्थ ऑफ द कॉलम इज स्मॉल। हाँ बच्चों, बात समझ आई? यस सर। अब कोई क्लियर है? अब कोई डाउट तो नहीं है? नो। आगे चलें। अब देखो, अगर मैं इसकी विड्थ को बढ़ा देता हूं तो सही हो जाएगी ये प्रॉब्लम। देखो प्रॉब्लम सॉल्व। सेकंड होती है नेम एरर। एक होती है नेम एरर। नेम एरर कैसी होती है? वो होती है कुछ ऐसी, दिखा देता हूं मैं आपको। कभी आप देखना, ये आती है ऐसे, ऐसी होती है कुछ, ठीक है बच्चों? ये एरर क्यों आती है बताओगे? ये ऐसे होती है, एग्जैक्ट, बिल्कुल। अब बच्चों ये एरर क्यों आती है? नाउ टेल मी, कौन बताएगा? बोलो बच्चों, बोलोगे? सर नो आइडिया सर। आइडिया, ओके। ये एरर आती है कि दिस एरर comes whenever Excel is not able to recognize the text in the formula। जैसे आप कोई एक फॉर्मूला लगा रहे हो, राइट? उस फॉर्मूला में जो आपने लिखा फॉर्मूला, उसमें जो टेक्स्ट है उसमें आपने सपोज स्पेलिंग मिस्टेक कर दी सपोज, तब ये वाली प्रॉब्लम एराइज होगी। जैसे अब एग्जांपल ले लेते हैं, 1 2 3 4, ठीक है? अब मुझे इसका ना सम निकालना है यहाँ पर, तो मैंने यहाँ लिखा SUM, ठीक है? सॉरी, पहले एक कोसाइन लगेगा, SUM, ठीक है? कहां से लगाना है? E1 है ना, E1 से लेकर E4 फॉर्मूला, ठीक है बच्चों? यस सर। ठीक है? मैंने करा एंटर, तो टोटल आ गया। कोई प्रॉब्लम इसमें? लेकिन क्या हुआ, गलती से जब मैं फॉर्मूला लिख रहा था तो जल्दबाजी में मैंने SU लिख दिया, SUM नहीं लिखा, ठीक है? मैंने क्या किया कि SU लिख दिया, SUM लिखना भूल गया। अब मैंने करा एंटर। नाउ लुक एट दिस, आ गई एरर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाई दिस एरर अराइजेस एंड हाउ वी कैन रिजॉल्व दिस एरर। सबसे बड़ी बात समझ रहे हो बच्चों? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? क्योंकि देखो, एरर आना तो ठीक है, एरर आ रही है, लेकिन एरर क्यों आई है और इस एरर को हाउ वी कैन रिमूव। अब आपको देखा कि ये एरर आ रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये एरर क्यों आ रही है। इसका मतलब हमने या तो फॉर्मूला में कुछ गड़बड़ करी है, कुछ प्रॉब्लम तो हुई है। तो आप यहाँ जाओ, क्लिक करो, तो पता लगा, अरे अच्छा SU लिख दिया, हमें SUM लिखना था, ठीक है? SUM कर दो, ओके करो। नाउ एरर इज रिमूव्ड। बच्चों, बात समझ आएगी? यस सर। यस सर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, थर्ड टाइप ऑफ एरर, दैट इज कॉल्ड वैल्यू एरर, राइट? और ये कुछ होती है हमारी ऐसी, ये कुछ होती है ऐसी हमारी वैल्यू, उसने वैसे अपने आप बना दी है वैल्यू। ये क्या होती है, कोई बताएगा? सर हाँ गलत बच्चों, क्या वैल्यू बच्चों? एंटर कर दी हो, जैसे 2 की सीरीज में एंटर कर रहे थे, एकदम से हमने ट्रिपल का शायद- कोई डाल दिया हो। नहीं, शायद सर ये वैल्यू को रिकॉग्नाइज ना कर पाए। ये कई बार हाँ क्या होता है कि जो आपने वैल्यू डाल रहे हो ना, वेरिएबल डाल रहे हो, राइट, वो नहीं हो। वो रॉन्ग है वेरिएबल्स। हम्म। उस केस में ये वाली एरर आती है। जैसे मैं बताता हूं आपको, आपने डाला 1 2 3 और यहां डाल दिया A, ठीक है? अब इसको सम करोगे तो ये एरर दिखाएगा, ठीक है? आपने करा इक्वल्स टू F1
ठीक है, F2, F3, F4, ये देखो आ गई एरर। क्योंकि अगर आप नंबर को जोड़ रहे हो, ऐड कर रहे हो, राइट, तो उसमें कोई करेक्टर थोड़ी ऐड हो सकता है। बच्चों बात समझ आ रही है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब आपको पता होना चाहिए कि ये एरर आई है, वैल्यू एरर, इसका मतलब कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, हमारे डेटा में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, राइट। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हो सकती है कि मे बी पॉसिबल कि हम यहाँ 1 2 3 की जगह पर 4 लिखना चाह रहे हो, गलती से हमने ए लिख दिया। ओके, 4 कर दो यहाँ पर, ये एरर आपकी रिमूव हो जाएगी। नाउ देखो, नाउ यू कैन सी दिस एरर इज रिमूव्ड। हाँ भाई बच्चों, बात समझ आ रही है? यस सर। बहुत कॉमन एरर्स हैं ये सारी, कि जनरली आप फेस करते हो। हाँ बच्चों, समझ आई बात? फोर्थ है डिवीजन एरर। डिवीजन एरर का शेप होता है कुछ ऐसा, ये देखिए एरर कभी बच्चों, व्हाई इट्स अराइजेस, बताओ बच्चों। दैट इज कॉल्ड डिवीजन एरर। बोलो बच्चों। नो सर। नहीं पता? नहीं। ओके, दिस, ये मतलब दिस इज द सिंपलेस्ट एरर। मेरे ख्याल से आपको पता होना चाहिए ये वाली एरर, कि whenever you attempt to divide a number by 0, पता है आपको बच्चों? नहीं सर अब लग गया। पता लग गया कि जब हम हाँ कभी सर। भी आपको पता है ना, किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि 0 से डिवाइड करते हो तो उसका मतलब होता है इंफिनिटी। समझ में आई बच्चे बात? यस जैसे सर। जैसे मैंने यस यहाँ सर। पर लगा देता हूँ फॉर्मूला, इज इक्वल्स टू F1, राइट, डिवाइड बाय 0। एक मिनट, सॉरी, ओ कर दिया मैंने, 0 करने में गलती हो गई। देखो वही आ रही है ना प्रॉब्लम की, वो फंक्शन को रिकॉग्नाइज। नाउ लुक एट दिस, आ रही है बच्चों एरर? देख ली? क्योंकि हम 0 से डिवाइड कर रहे थे इसलिए। 0 से डिवाइड कर रहे थे, एग्जैक्टली। क्योंकि आप देखो, मैथमेटिक्स का रूल है, ये तो पता ही होगा कि आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। यू कांट डिवाइड एनी नंबर बाय 0। अब इसको देखो, मैं कर देता हूं, सब में यही आएगा। नाउ हाउ यू कैन रिमूव, कि मे बी पॉसिबल कि आपने इसको गलत कर दिया हो सकता है आप ये करना चाह रहे हो F1 डिवाइड बाय E1 करना चाह रहे होगे शायद आप। ठीक है, कर दो इसको, तो आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व। हाँ बच्चों, यस समझ आ सर। गई? आप हाँ कभी जी भी सर। वैसे भी देखोगे ना मैथमेटिक्स में, आप जिस मैथमेटिक्स तो सभी ने पढ़ी होगी, कभी भी हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं करते। 0 से डिवाइड करने का मतलब होता है इंफिनिटी। ठीक है, इनडिटरमिनेट फॉर्म कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, समझ आ गई बात? यस सर। This is fourth type of error, right? Okay, next, fifth है null error। ये क्या होती है बच्चों? ब्लैंक छोड़ दिया। इसको देखते हैं, ये होती है कुछ ऐसी, पहले मैं लिख देता हूँ, आप एक बार वो देख लो, इसका नॉर्मल से कैसा ही है, इस टाइप की। ये क्यों आती है बच्चों? ये सबसे ज्यादा कॉमन एरर है एक्चुअली, कॉमन टाइप ऑफ एरर, कि when you forget to separate the two cell references correctly,
then you will receive this error. कि आप जैसे कोई एक टोटल कर रहे हो और टोटल करते टाइम में डेफिनेटली हमें सेल को सेपरेट करना ही होता है कि या तो E1, E2, E3, E4 सबको सेपरेट करके लिखना है, राइट। और कई बार क्या होता है कि जब हम जल्दबाजी में पता लगी कि हम सेपरेट करना भूल गए, राइट, उसके आगे प्लस साइन लगाना भूल गए, राइट, तो ये एरर आएगी। ठीक है, समझ आई बात, नहीं आई? क्या कहना चाह रहा हूं मैं बच्चों? सर रिपीट कर दो एक बार। सर प्लस जैसे साइन, चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं, चलो कोई नहीं, एग्जाम्पल देख लो। जैसे E1 प्लस E2 प्लस E3, ठीक है। अब यहां मुझे प्लस लगाना था, ठीक है, मुझे प्लस लगाना है ना, मैं प्लस लगाना भूल गया और मैंने लिख दिया E4, ठीक है, एंटर। नाउ लुक एट दिस, ठीक है, क्योंकि देखो जब आप टोटल करते हो तो डेफिनेटली ऑल द सेल्स शुड बी सेपरेटेड टू ईच अदर, राइट। अगर E1 है तो वो अलग सेपरेट हो गया, फिर E2, फिर E3, फिर E4। हमने क्या किया कि अब देखो इसमें एरर देखो, ऊपर देखो एरर बच्चों, स्क्रीन साइज इंक्रीज कर देता हूं थोड़ा। E4 के बीच में, यस, E4 और E3 के बीच E3 में के बीच हमने में। सेपरेशन नहीं किया, उनको हमने एक साथ लिख दिया, इसीलिए वो ले रहा है नल वैल्यू, नल एरर। बच्चों समझ आई बात? यस सर। यस सर। डाउट किसी को? अब रिमूव कैसे होगी एरर? प्लस साइन डाल दो बीच में। सिंपल प्लस साइन डालना है हमें, एंटर करो। नाउ एरर इज रिमूव्ड। हाँ जी बच्चों, बच्चों सही है बात, समझ आ गई? यस सर। यस सर। नेक्स्ट, सिक्स्थ एरर, दैट इज कॉल्ड रेफरेंस एरर। ये तो बहुत कॉमन देखा होगा तुमने, ये कुछ ऐसी होती है, दिखा देता हूं मैं आपको, ऐसी देखिए एरर बच्चों, याद आ रही है कुछ एरर बच्चों? ये एरर याद आ रही है कुछ? यस सर। कब आती देखी है हुई बताओ? देखी हुई है, कब आती है लेकिन? सर रॉन्ग सेल या फिर रो वो कर लिया हो चूज। हाँ नहीं, ये आती है एक्चुअली कि व्हेन योर फॉर्मूला कंटेन्स सम इनकरेक्ट सेल रेफरेंसेस, ठीक है। अगर कोई इनकरेक्ट सेल रेफरेंसेस आ रहे हैं, राइट, उस केस में ये वाली एरर आती है, ठीक है। जैसे चलो एक एग्जांपल लेते हैं, 2 4 6 8 10 12, ठीक है। ये मैंने कुछ डेटा ले लिया, अब मुझे इसको सम करना है। मैंने इसका सम किया, सम करेंगे तो D8 प्लस E8 F8 G8 प्लस H8, ठीक है बच्चों। आंसर आ गया मेरा, कोई प्रॉब्लम? नो सर। बच्चों नो सर। नो कोई सर। प्रॉब्लम? आ गया ना आंसर? आ गया। सपोज मैंने क्या किया कि जब मैं ये काम कर रहा था, फिर मेरे को ना एक गलती से कॉलम डिलीट करना था सपोज, ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये वाला एक कॉलम ना डिलीट कर दिया। नाउ लुक एट दिस, आ गई एरर? क्यों एरर आई? अब इसके फॉर्मूला में देखो, नाउ रेफरेंस एरर इज देयर, कि भाई एक कॉलम और भी हुआ करता था DEFG, एक H वाला कॉलम भी था, वो उड़ा दिया। समझ रहे हो बच्चों बात को? यस सर। यस सर। ठीक है, तो वो एक कॉलम उड़ा दिया हमने भाई, डिलीट कर दिया वो है, राइट। तो या तो तरीका ये कि इसको या तो आप अनडू कर लो, पहली बात तो देखो सही हो गया हमारा,
तो देखो DEFGH कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा एक I भी रहता है इसमें, I भी लिया ना शायद। चलिए I भी लेना है, I8। चलो ठीक है बच्चों, तो ये हमारा DEFGHI ये सारे मैंने ले लिए थे। अब गलती से मैंने ये वाला उड़ा दिया, डिलीट कर दिया, तो अब डिलीट करना है, डिलीट कर दो। अब आ गई एरर। अब देखो, अब ये बता रहा है कि एक गायब है, राइट। तो व्हाई दीज टाइप ऑफ एरर्स अराइजेस एंड व्हाट आर द सॉल्यूशन फॉर दैट। हाँ बच्चों बात समझ आ रही है? यस सर। ठीक है, this is the sixth kind of error that is called the reference error. Now next come to the seventh, that is called number error. अरे यार, नंबर एरर ये कुछ आती है, ऐसी आती है, ये ऐसी वाली। ये क्यों आती है बच्चों? इस एरर के आने के एक्चुअली देयर आर टू रीजंस। नंबर वन रीजन कि यू मे हैव एंटर्ड अ फॉर्मूला दैट प्रोड्यूसेस अ नंबर दैट इज टू लॉन्ग, राइट, और टू स्मॉल टू बी रिप्रेजेंटेड इन एक्सेल। या तो वो नंबर बहुत ज्यादा बड़ा है या वो नंबर बहुत ज्यादा छोटा है, राइट, तब आएगी ये प्रॉब्लम। दूसरा रीजन कि इफ यू ट्राई टू कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर, राइट, तब ये प्रॉब्लम आएगी कि अगर आपने एक नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट लिया तब ये प्रॉब्लम हमारी जनरली अराइज होती है। हाँ बच्चों बात समझ आई? बच्चों बात समझ आ यस रही है? सर। यस ठीक है, सर। जैसे अब मैंने एक लिखा, मैंने यहाँ पर, ये मैं हटा दिखा देता हूँ आपको करके कैसे आती है। ठीक है, अब मैंने स्क्वायर रूट का याद है, स्क्वायर रूट बताया था ना मैम ने, कैसे बताया था स्क्वायर रूट, कैसे निकालते हैं स्क्वायर रूट बच्चों? SQ। यस, SQRT यही होता है ना? यस सर। ठीक है, ब्रैकेट ब्रैकेट में H1 है ना, हाँ H1, ठीक है, कॉमा आ गया। ठीक है, मैंने ड्रैग कर दिया, आ गया। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? नो सर। ठीक है, अब गलती से जब मैं यहाँ 6 लिख रहा था, 6 की जगह पर मैंने लिख दिया -6। नाउ लुक एट दिस, आ गई है ना? -6 का कोई स्क्वायर रूट नहीं है। यस, -6 का स्क्वायर रूट नहीं होता। बच्चों बात आ समझ आ गया रही सर है? सब। हाँ जी सर आ गई। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, फिर आगे चले हम। सर एक बार रेफरेंस एरर बता दो, उसमें थोड़ा सा डाउट। रेफरेंस एरर यस क्या सर। थी भाई? कौन बताएगा भी रेफरेंस एरर? बच्चों बताओ, बता देता हूँ मैं रेफरेंस एरर। जैसे 2 4 6 8, ठीक है। अब देखो उल्लास, मैंने इसमें इसको ऐड कर देते हैं, E8, ये है ना E8 है ना, E8 प्लस E9 प्लस E10 प्लस और E11, ठीक है, ये आ गया। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। अब मैं काम कर रहा था एक्सेल में, तो मुझे कुछ अपने सेल्स या कॉलम्स या रोज कुछ भी कह लो, मुझे सपोज डिलीट करने थे उस टाइम। तो मैंने क्या किया, और मैंने ये, मुझे ध्यान नहीं था कि मेरे एक कोई ऐसी टेबल बनी हुई है जिसमें कि मैंने कैलकुलेशन की हुई है, सम निकाला हुआ है, राइट। तो मैंने गलती से क्या किया, मैंने इसको डिलीट कर दिया। नाउ लुक एट दिस, आगे क्यों? क्योंकि उसको रेफरेंस नहीं मिल रहा, एक तुमने बीच में से उड़ा दिया भाई, राइट। यस सर। अब इसके दो तरीके हैं रिमूव करने के, या तो आप इसको रेस्टोर करो पुराना वाला,
ठीक है, या फिर इसमें से जो बीच में रेफरेंस वाला आ रहा है उसको हटा दो वहां जाके। मीन्स की या तो आप इसको देखो ऐसे कर दो, ये हटा दो यहां से, ओके करो, आ गया, करेक्ट हो गया, वो बाकी का कैलकुलेट हो गया, फिर बाकी का कैलकुलेट हो गया, क्योंकि रेफरेंस आपने दिया हुआ है ना वहां पर, आपने पूरी कैलकुलेशन उसके बेस पे की हुई है, क्योंकि बिकॉज दिस एरर अकर्स कि मे बी पॉसिबल कि जो आपका जो रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहा है आपका, हो सकता है ये आपने कहीं और रेफरेंस में दे रखा हो, तो वो तो वही एड्रेस लेकर रखेगा ना पूरा सेल्स का, और आपने बीच में से एक सेल उड़ा दी तो वो रेफरेंस ले लेगा, फिर वहां तक सारी शीट्स जो इससे अटैच होंगी सब में एरर आएगी, सारे में एरर आएगी। ठीक है बच्चे, क्लियर है? यस सर, यस सर। ठीक है, तो दीज आर द कॉमन टाइप्स ऑफ एरर एक्चुअली वी ऑलवेज फेस। ठीक है बच्चों, तो हमारी तरफ से ये एक्सेल का काफी पोर्शन हमने कवर करा दिया है आप लोगों को। ठीक है, और इसके अलावा कोई अगर आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। नेहा मैम, आप कुछ? यस सर, यस सर। आई होप आप लोगों को बच्चों सब समझ में आया हो, एंड ट्रस्ट मी दिस वर्कशॉप विल एड वैल्यू टू योर रेज्यूम एज वेल एज टू योर नॉलेज। बाकी आपको पूजा मैम ने भी बताया था, प्रशांत सर ने भी बताया पीछे सेशंस में कि जो भी हमने सेशन लिया है ये सब कुछ यूट्यूब लाइव पे वीडियोस इसकी आपके BCIP कैलाइडोस्कोप जो कि चैनल है उस पे डली हुई है, तो एनी टाइम यू वांट टू गो बैक एंड व्यू whatever you have learned in this workshop, आप जाके देख सकते हो। यस, ठीक है, ऑल 5 days की जो हमारी वीडियोस हैं वो हमारे चैनल पे अपलोडेड हैं, तो इफ यू वांट टू कंसल्ट एनी टॉपिक तो समझ नहीं आया, पीछे रह गया है, तो वो आप वहां से जाके देख सकते हैं। यस, यू कैन रेफर देम। वन मोर थिंग आई जस्ट वांट टू से, मैंने अभी एक चैट बॉक्स में एक फीडबैक लिंक डाला है। I want everyone to fill this feedback link. This is actually very important for us. Yes, so, अभी उसको फिल करो और मेरे को थंब साइन भेजो फटाफट से। हाँ, please. Click on link. Everyone do it. We are waiting for your response. Yes, उसके बाद हम we will bind up the class. मेरे पास डेटा है इसका, मैं चेक कर रहा हूँ कितने बच्चों का आया है। बिल्कुल सर, चेक करते रहिए, जिसका नहीं आया वी विल लेट दैट पर्सन नो। मुझे थंब साइन भेजते जाइए आप लोग, ठीक है, जिससे कि मेरे को पता लगता जाए कि हाँ कौन कौन किस किसने फिल कर दिया है। अदरवाइज मेरे पास आज की अटेंडेंस है, फिर मैं चेक करूंगा कि किस किसने नहीं फिल किया है अभी तक। सर एक्सक्यूज मी सर। बोलो बोलो। आप गूगल फॉर्म की बात कर रहे हो सर? हाँ जी, जो मैंने अभी फॉर्म आपने चैट बॉक्स में डाला है बेटा, एक अभी उसको क्लिक करो और चैट बॉक्स में डाला हुआ है, आप चेक करो। यस मैम, डाला हुआ है। हाँ, मैंने नहीं भरा। अभी फटाफट फिल करो। ओके सर, अभी भर रहा हूँ। सर जो फिल कर लिए दे कैन लीव ना सर? हाँ, वेट करो, अभी थोड़ी देर वेट कर लो बच्चों, और बस 5 मिनट की बात है। हाँ जी शिवम, बताइए, यू वांट टू आस्क समथिंग? शिवम राठौर, you have raised your hand.
इसके अलावा भी एक्सेल में me and Pooja ma'am are also teaching. A section I am teaching and Pooja ma'am section B teaching. If you have any problem related to MS Excel, you can ask in the class also. No problem. बच्चों क्लियर है बात, समझ आ गई? यस सर, यस सर। Yes, sir. अगर आपको लगता है कि हमने कुछ प्रैक्टिस की और हम कहीं पर अटक गए, राइट? If you are facing any type of problem in MS Excel, so you can ask in your class from your respective teachers, right? पूजा मैम बी सेक्शन में पढ़ाती है, आपको पता ही आप लोगों को, और ए सेक्शन में मैं पढ़ा रहा हूँ राइट नाउ, राइट? तो आप कभी भी पूछ सकते हो, एनी टाइम, नो प्रॉब्लम। एंड पूजा नेहा मैम इज आल्सो अवेलेबल, डोंट वरी। अगर आपको लगता है कि नेहा मैम से हमें पूछना है कुछ, तो आपको जिससे भी कोई क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं। With all three of these faculty we are available in the college. Yes. तो आप लोगों को जब भी लगे कोई डाउट है, पूछना है, you can contact any one of us. You can send us email in case you have any particular query. तो जहाँ पे भी आपको लगता है कोई दिक्कत आ रही है, we are always available, three of us. Yes, yes. कर दिया सर फिल। हाँ बिल्कुल, गुड, वेरी गुड। Received only 29 responses till now, 30. Yes, फटाफट फिल करो बच्चों, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बच्चे। सर ये तो फिल कर दिया फॉर्म, इसके अलावा भी सर कोई फॉर्म था? नहीं, बस यही फॉर्म है बेटा, कवित, यही फॉर्म है। क्योंकि सर मेरे को पता नहीं था, मैं बीमार चल रहा हूँ 3-4 दिन से। नहीं कोई नहीं, बस यही फॉर्म है बेटा। ओके सर, थैंक यू। ओके, सीआर अभी है क्या? दोनों सेक्शन के सीआर अवेलेबल हैं अभी? Yes, sir. हाँ बेटा, एक काम करना कि हो सकता है कि कुछ बच्चे जो है ना आज ज्वाइन नहीं कर पाए हो, राइट? तो आप उनको भी ये वाला ना फॉर्म एक बार भेज सकते हो। Sir, forward कर दो। हाँ इंडिविजुअली, ग्रुप पे मत डालना। ग्रुप पे तो प्रज्ञा और मेघा एंड ललित एंड कौन है एक और? प्रज्ञा तुम्हारे साथ कौन है? Sir, शुभम। शुभम, यस। तो हो सकता है कि जो बच्चों ने अटेंड नहीं किए वो भी भरें, उनको नहीं भेजनी है, राइट? एक बार कंफर्म कर लेना कौन कौन है जिन्होंने अटेंड की थी, उनको भी एक बार इंडिविजुअली आप भेज देना, ठीक है प्रज्ञा? ओके मेघा, सर। प्रज्ञा, शुभम एंड दलित, राइट? क्योंकि हो सकता है बाई चांस आज कुछ प्रॉब्लम रही हो, ना ज्वाइन कर पाए हो, क्योंकि आज कमी दिख रही थी मेरे को स्ट्रेंथ ना बच्चों की, तो मे बी पॉसिबल कि कुछ लोग बच्चे अटेंड नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ एनी रीजन, क्योंकि आजकल थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज भी चल रहे हैं बच्चों के साथ, राइट? तो उनको इंडिविजुअली भेजना है बच्चा। देखने प्रज्ञा और मेघा, ललित एंड शुभम, याद रखना ग्रुप पे नहीं डालना, राइट? ओके सर। हाँ, अनऑफिशियल ग्रुप पे भी नहीं डालना। आप उनको बोल देना कि कौन कौन है जिसने अटेंड की थी और कौन कौन इंटरेस्टेड था, और बोल देना कि एक गूगल फॉर्म आया था फीडबैक का, तो वो भरना है, तो उनको इंडिविजुअली भेजनी है आपको, ठीक है बच्चों? ओके सर। श्योर सर, श्योर। थैंक यू सर। ओके, तो जो भर चुका है नाउ दे कैन लीव बच्चों। Yes, those who have filled they can exit. हाँ, और बाकी Thank you so much everyone for patiently listening to us. यस डेफिनेटली। फटाफट फिल करो जिसका रह गया बेटा। 2 मिनट का फॉर्म है, नॉट मोर देन 2 मिनट्स, आई थिंक इट विल नॉट टेक मोर देन 2 मिनट्स। मिताली, you have filled. Dolly, Mitali, संचिता, अभिषेक, प्रीति, केविन,
कहाँ गए? बोल नहीं रहे बच्चे, क्या बात है भाई? I think sir we Hello. can हाँ बोलो बच्चों। हाँ मैं कह दी सर नाउ वी आई थिंक वी कैन एग्जिट, ये बच्चे भर देंगे। हाँ बच्चों आप फिल कर रहे हो ना? सर फॉर्म चलो वो फिल, भर दिया सर फॉर्म। यस सर। आप फिल करो और फिर एग्जिट सर कर दिया, डन सर। ओके Those who have filled, they can exit, please. ओके सर। ओके सर, Those who have filled, they can exit. थैंक यू सर। Okay. Yes, Sanchita, Meenakshi. Dolly, Swati, Anshul, Kavit, beta, you can leave. Okay, sir. Sir, thank you. Kevin, okay, बच्चे. Kevin, यस सर। filled form. यस सर filled. Those who have filled the form, You can they can leave, beta. exit. Okay, thank you sir, thank you ma'am. Those who have filled, they can exit. Swati, Sanchita.